Assalamualaikum students. Today our next topic is composing effective negative message. Before this topic, we have already discussed that which strategies or you need to know for delivering a negative message. Or we have gone through that communicating the negative news. How can you communicate a negative news effectively, and how can you analyze the negative news strategies? And we have discuss the two strategies are direct strategy and indirect strategy, and we have also discussed this thing that when to use the direct strategy to deliver a negative message and when to use indirect strategy to deliver a negative message. Today we will discuss that composing effective negative message. It means that how can you write, how can you compose a negative message and effective negative message, कि आप जो है वो एक effective negative message जो है वो किस तरह से compose कर सकते हैं. Although it's not an easy job, it's not always pleasing when you deliver a negative message, and it's not pleasing for the reader as well. जब आप कोई भी negative news या bad news जो है वो deliver करते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता. It's not an easy job to accept that negative news. उस नेगेटिव न्यूज़ को जो एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, और ना ही आपसे तवक्को की जाती है टू कन्वे दिस नेगेटिव न्यूज़ you are just expected to deliver that negative news in an effective manner, and you are just expected to deliver that negative news in a sugar coated way, but you are not expected, आपसे ये तवक्को नहीं की जाती to make the receiver happy while delivering a negative news. यानी कि जब आप नेगेटिव न्यूज़ जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं तो आपसे ये ज़रूर तवक्को की जाती है कि हाउ कैन यू मेक योर नेगेटिव न्यूज़ इफेक्टिव, एंड हाउ कैन यू डिलीवर दैट नेगेटिव न्यूज़ और नेगेटिव मैसेज इन अ पॉजिटिव वे और इन अ शुगर कोटेड वे. लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं होता कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस नेगेटिव न्यूज़ को रिसीव करने के बाद जो है योर रिसीवर विल गेट हैप्पी while delivering a negative news. But you can एक काम आप ये कर सकते हैं कि you can reduce its impact. यू कैन लिसन इट्स इंटेंसिटी. आप इसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं, आप इसके इम्पैक्ट को, इसके रिजेंटमेंट को कम कर सकते हैं. और वो किस तरह से कम कर सकते हैं? हाउ कैन यू रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट, हाउ कैन यू कन्वे इट इन अ बेटर वे. आप इसको बेटर वे में किस तरह से कन्वे कर सकते हैं? बाय स्ट्रक्चरिंग योर इमेज योर मैसेज सेंसिटिवली. इट मीन्स दैट कि अगर आप अपने मैसेज को सेंसिटिवली कन्वे करें, हमने ये स्टार्टिंग में भी पढ़ा था जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि आपने नेगेटिव कम्युनिकेट किस तरह से करना है नेगेटिव न्यूज़ को इफेक्टिवली. तो हमने उसमें देखा था कि आपने जो है उसको जो है आप उसमें एक जो पॉइंट था वो ये भी था कि यू नीड टू कन्वे और यू नीड टू डिलीवर अ नेगेटिव मैसेज सेंसिटिवली. ठीक है जी. तो अब इसमें जो है यू कैन वाइल डिलीवरिंग अ नेगेटिव मैसेज यू कैन रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट, इट्स रिजेंटमेंट बाय इम्प्रूविंग और बाय स्ट्रक्चरिंग योर नेगेटिव मैसेज सेंसिटिवली. मोस्ट नेगेटिव मैसेज कंटेन्स यूजुअली बफर. फर्स्ट आप बफर हमने उसकी स्ट्रेटजीज पढ़ी, स्टेप्स पढ़े थे. सबसे पहले बफर, देन रिजल्ट, देन द बैड न्यूज़, एंड द फोर्थ वन इज़ क्लोजिंग. So most negative message contains all these four things: buffer, reason, bad news and closing. There are the four components of indirect strategy. ये basically four components हैं किसके? indirect strategy के. जबकि on the other hand जो direct strategy होती है उसमें you just go ahead, you just straight forward, you become straightforward and straightforwardly you deliver a negative message or negative news. So these are the four components of indirect strategy making negative message effective, जो कि negative message को effective कर सकते हैं. वो कौन से four components हैं जी? I repeat: buffer, reason, bad news and closing. And we have already discussed it in the previous lecture जब हमने पढ़ा था कि when to use indirect strategy. अब इसमें हाउ कैन यू कंपोज एन इफेक्टिव नेगेटिव मैसेज. अब आप लिख कैसे सकते हैं एक इफेक्टिव मैसेज को? उसमें नंबर वन थिंग इज़ दैट ओपनिंग इनडायरेक्ट मैसेज विद अ बफर. आपने इनडायरेक्ट मैसेज को जो है एक बफर के साथ जो है वो स्टार्ट करना है. अब बफर क्या होता है? बफर इज़ अ डिवाइस विच रिड्यूस शॉक और पेन. बफर एक ऐसी डिवाइस है, आपने इसमें वो तरीक़ाकार जो है अडॉप्ट करना है जो रिड्यूस करे और जो है वो कम कर दे, लेसन कर दे उसकी इंटेंसिटी को, और जो रिड्यूस करे उस शॉक को और उस पेन को जो कि रिसीवर इज़ गोइंग टू गेट व्हेन यू विल डिलीवर अ नेगेटिव मैसेज. जो ऑब्वियसली रिसीवर को जो शॉक और जो तकलीफ़ होगी जब आप उसको नेगेटिव मैसेज जो है नेगेटिव न्यूज़ डिलीवर करेंगे. टू बफर द पेन ऑफ अ बैड न्यूज़, टू बफर द पेन ऑफ द बैड न्यूज़. अब बफर का मतलब ये होता है कि उसकी इंटेंसिटी को आपने बैड न्यूज़ की इंटेंसिटी को कम करना है, उसकी जो है वो रिड्यूस करना है उस शॉक और पेन को. सो टू बफर द पेन ऑफ बैड न्यूज़ बिगन विद
न्यूट्रल बट मीनिंगफुल स्टेटमेंट। इसमें अगर आप बफर में आप करते क्या है कि आप अपने मैसेज को, यू स्टार्ट योर मैसेज विद अ न्यूट्रल स्टेटमेंट। आप एक न्यूट्रल स्टेटमेंट के साथ अपने मैसेज को जो है वो स्टार्ट करते हैं, देन इनकरेजेस द रीडर टू कंटिन्यू रीडिंग, और जिससे रीडर को इंकरेजमेंट मिलती है कि वो आगे जो है वो नेगेटिव मैसेज को रीड करें। अब द बफर शुड बी रेलिवेंट, इट शुड बी कंसाइज एंड it should provide a neutral or a natural transition to the explanation that follows। क्योंकि बफर के बाद अगला स्टेप क्या है, रीजनिंग है। यानी कि पहले आप बफर करते हैं, जिस बफर में आप एक स्टेटमेंट देते हैं, आप उसको जो है वो आप उसको स्टार्ट करते हैं मीनिंगफुल स्टेटमेंट से, ताकि जो है वो रीडर को इनकरेज करते हैं तो वो आगे पढ़े, उसको मज़ीद रीड करे। और जो बफर है वो कैसा होना चाहिए, वो रेलिवेंट होना चाहिए, यानी कि वो स्टेटमेंट जो है रेलिवेंट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, और एक नेचुरल ट्रांसलेशन होनी चाहिए कि जो रीडर है उसको आगे क्या एक्सप्लेनेशन मिल रही है। Not all the business communication author agree that buffer actually increase the effectiveness of negative message। जितने ज़्यादा जो इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम बिजनेस कम्युनिकेटर जो हैं या बिजनेस कम्युनिकेशन के तमाम ऑथर्स जो हैं इस बात से एग्री करते हैं कि नेगेटिव मैसेज को डिलीवर करने के लिए यू नीड टू स्टार्ट इट विद द बफर। आपको इसको बफर के साथ जो है वो स्टार्ट करना है, लेकिन ज़्यादातर जो है दे एग्री ऑन इट। हाउएवर मैनी कल्चर्स, लेकिन बहुत से ऐसे कल्चर्स जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं कि यू कैन यूज़ अ बफर बिकॉज विद बफर यू कैन रिड्यूस द पेन, यू कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी, यू कैन रिड्यूस द शॉक ऑफ नेगेटिव मैसेज और नेगेटिव न्यूज़, एंड यू कैन सॉफ्टनिंग बैड न्यूज़, और इससे आप जो है वो बैड न्यूज़ को सॉफ्टन कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द वेरियस बफर पॉसिबिलिटीज़। अब बफर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मैं आपको कुछ बफर पॉसिबिलिटीज़ बताऊँगी। वो कौन सी बफर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, बेस्ट न्यूज़। मतलब बफर में आप स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, उसमें आप जो उसमें बेस्ट न्यूज़ है आप पहले वो डिलीवर कर दें, फिर आप जो है वो नेगेटिव न्यूज़ की तरफ आएँ। अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। कॉम्प्लीमेंट, या आप कॉम्प्लीमेंट दें बिफोर डिलीवरिंग अ नेगेटिव न्यूज़ और बिफोर राइटिंग अ नेगेटिव न्यूज़। एप्रिसिएशन ऑफ देयर प्रीवियस, थर्ड थिंग इज़ दैट एप्रिसिएशन में आप उनकी जो प्रीवियस जो एक्टिविटीज़ हैं या परफॉर्मेंस है उसको अप्रिशिएट करें। नंबर 4 इज़ एग्रीमेंट, नंबर 5 इज़ फैक्ट्स, नंबर 6 इज़ अंडरस्टैंडिंग। सो बेस्ट न्यूज़ का क्या मतलब है? सो दीज आर ऑल द वेरियस बफर पॉसिबिलिटीज़। ये बफर पॉसिबिलिटीज़ हैं। बफर क्या है कि बफर ये है कि जब आपने एक्चुअल नेगेटिव न्यूज़ को अनाउंस करना है तो उससे पहले हमने देखा कि 4 कंपोनेंट्स हैं जो आपकी नेगेटिव मैसेज को इफेक्टिव बना सकते हैं, जिसमें नंबर 1 बफर है। बफर का मतलब ये होता है, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, इज़ अ डिवाइस टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ शॉक और पेन। जो नेगेटिव न्यूज़ से आपको शॉक या पेन मिलता है उसके इम्पैक्ट को कम करता है। अब बफर की भी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई हूँ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। नंबर 1 इज़ बेस्ट न्यूज़। बेस्ट न्यूज़ मीन्स दैट यू स्टार्ट योर मैसेज विद, और यू स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द मैसेज दैट रिप्रेजेंट द बेस्ट थिंग और दैट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट न्यूज़। यानी कि अब आपने सबसे पहले जो, अगर आपने नेगेटिव न्यूज़ डिलीवर करनी है तो उसमें सबसे पहले आपने जो बफर है उसमें आप उसको वो वाला पार्ट बताएं जो बेस्ट न्यूज़ है पूरे मैसेज में, जो कोई बेस्ट बात है आप वहाँ से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो आप जाएं नेगेटिव मैसेज की तरफ। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स कि व्हेन द नेगेटिव मैसेजेस आर डिलीवर्ड ग्रेजुअली then they are easy to understand, then they are more acceptable, easy to accept and easy to understand। तो इसलिए जो है आप पहले उसमें से उसका जो बेस्ट पार्ट है या जो बेस्ट न्यूज़ है वो निकालें और फिर जो है वो एक्चुअल नेगेटिव न्यूज़ की तरफ जो है वो जाए। अब इसमें एक एग्जांपल है, आपके रिसोर्स पैक में एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अ मैसेज टू वर्कर्स अनाउंस्ड न्यू हेल्थ प्लान्स रूल्स लिमिटिंग प्रिस्क्रिप्शंस टू अ 34-day सप्लाई एंड इंक्रीजिंग को पेमेंट्स। यानी कि अगर आपने एक मैसेज कन्वे करना है वर्कर्स को और जिसमें आपने अनाउंस करना है कि आपका जो हेल्थ प्लान है वो लिमिटेड कर दिया गया है और उसमें सिर्फ आप 34 जो डेज़ हैं उन तक जो है वो आप को फेवर दी जा सकती है और इंक्रीजिंग को पेमेंट्स विद होम डिलीवरी। हाउएवर एम्प्लॉयज़ कुड सेव अप टू $24 ऑन ईच प्रिस्क्रिप्शन दी। और वो कह रहा है कि होम डिलीवरी जो है अगर वो कोई मंगवाएगा तो उसको सिर्फ $24 तक जो है वो हर प्रिस्क्रिप्शन पे जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये गुड न्यूज़ आप पहले दे दें, उसके बाद जो बैड न्यूज़ आपने थी तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप पहले ये वाली गुड न्यूज़ उसको दे दें कि होम डिलीवरी वाले लोग जो हैं दे कैन गेट अप टू $24 और उसके बाद आप ये बताएंगे इसको जो है वो 34 डेज़ तक जो है वो सप्लाई को जो है लिमिटेड कर दिया गया। तो टू एम्फसाइज द गुड न्यूज़ यू माइट राइट, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यू कैन नाउ अचीव सिग्निफिकेंट सेविंग एंड अवॉइड ट्रिप्स टू
ड्रग स्टोर बाय हैविंग योर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स डिलीवर टू योर होम। ठीक है जी, तो ये है बफर। और बफर में यानी कि पहला पॉइंट ये था कि आपने बेस्ट न्यूज़ को पहले बताना है जो उसका बेस्ट पार्ट है, और उसके बाद आपने एक्चुअल नेगेटिव न्यूज़ जो है वो डिस्कस करनी है, डिलीवर करनी है। सेकंड थिंग इज़ दैट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं बफर में। बफर का मतलब होता है उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो बफर में आप ये कर सकते, कॉम्प्लीमेंट में आप ये कर सकते हैं कि आपने जो है अगर उस रिसीवर की कोई भी अकम्पलिशमेंट है, कोई भी अचीवमेंट है, उसकी गुड परफॉर्मेंस है, सो फर्स्ट यू नीड टू प्रेज द रिसीवर्स accomplishment, receivers performance, previous performance, receivers achievement, then you can go for a negative news। उससे उसको जो है वो encouragement मिलेगी, हौसला मिलेगा। the third या फिर उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन की या उसकी एफर्ट्स जो हैं, बट टू डू समथिंग, लेकिन यू नीड टू डू इट विथ सिंसियरली एंड ऑनेस्ट। ये नहीं कि आप उसकी जो है वो इतनी ज़्यादा जो है उसको आप उसको यानी कि एग्जैजरेट कर दें उसको जो है उसकी वो कॉम्प्लीमेंट्स उसको देते वक्त उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर दें कि बाद में वो आप अगर उसको कोई बैड न्यूज़ दे रहे हैं यानी कि उसको डाउन साइजिंग करने के लिए, या आप उसको जो है वो अगर ले ऑफ करने की बैड न्यूज़ सुना रहे हैं, जॉब से निकालने की, तो वो बाद में आप पे क्वेश्चन करे कि आप तो भी कह रहे थे कि आपने इतनी ज़्यादा आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क है, तो फिर जो है वो इसको, लेकिन वाइल प्रेजिंग और वाइल गिविंग द रिसीवर्स अकम्पलिशमेंट, उसकी जो परफॉर्मेंस है प्रीवियस या फिर उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, डू इट विद ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। उसके बाद है जी एप्रिसिएशन। उसमें आप ये कर सकते हैं कन्वे थैंक्स for doing business, for sending something, for showing confidence in your organization, for expressing feeling or simply providing feedback। बाद में आप नेगेटिव मैसेज को जो है वो डिलीवर करें, यानी कि पहले आप उसको शुक्रिया अदा करें कि उसने इतने अरसे तक आपके साथ बिजनेस किया, आपको आप पे कॉन्फिडेंस शो किया, आपको जो है गुड फीडबैक दिया, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने या उस इंडिविजुअल ने जो है वो आपके साथ जो एक्सप्रेसिंग यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और सिंपली प्रोवाइडिंग योर फीडबैक। इसी तरह जी नेक्स्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में आपने क्या करना है कि यू कैन ऑल्सो मेक अ रेलिवेंट स्टेटमेंट विद विच बोथ यू एंड योर रिसीवर कैन एग्री। आपको एक रेलिवेंट स्टेटमेंट बना सकते हैं या वो रेलिवेंट स्टेटमेंट शो कर सकते हैं जिस पे आप और आपका जो रिसीवर दोनों एग्री करें। फैक्ट्स, आप नेगेटिव न्यूज़ में जाने की तरफ या अनाउंस करने से पहले यू कैन ऑल्सो गिव द फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हैं। प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन दैट इंट्रोड्यूसेस द बैड न्यूज़। आप उसको ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और उसको जो है फिर देन यू गो फॉर अ नेगेटिव न्यूज़। पहले आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करें, देन यू गो फॉर अ नेगेटिव न्यूज़। नेक्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज़ द लास्ट थिंग, द सिक्स्थ वन। अंडरस्टैंडिंग शोज़ दैट यू केयर अबाउट योर रीडर। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आप वाकई यू रियली केयर फॉर योर रीडर, यू रियली यू आर कंसर्न्ड फॉर योर रीडर। आपका जो है कंसर्न है अपने रीडर के साथ, रिसीवर के साथ। तो शो दैट यू केयर अबाउट द रीडर। फॉर एग्जांपल इन एन ईमेल, मिसाल के तौर पर अगर आपने कस्टमर को कोई ईमेल लिखनी है जिसमें आपने उसको बताना है कि जो प्रोडक्ट है उसका जो डिफेक्ट है वो आपने मेंशन करना है तो उसमें द राइटर शोज़ द कंसर्न। जो राइटर है वो ऑब्वियसली अपना कंसर्न शो करेगा कि हाउ कंसर्न दे आर विद देयर कस्टमर्स, कि वो अपने कस्टमर्स के साथ जो है वो कितने कंसर्न है। ठीक है जी। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई आपके रिसोर्स पैक में, वो कुछ इस तरह से है कि वी नो दैट यू कि एक मरतबा ये हुआ कि अब ये एक ईमेल है जिसमें आप नोटिस करें कि राइटर जो है वो अपना किस तरह से कंसर्न शो कर रहा है। वी नो दैट यू एक्सपेक्ट superior performance from all the product you purchase from Office City. That's why we are writing personally about the Omega printer cartridge you recently ordered. ठीक है जी। So this email shows that how concerned you are. ठीक है, इसमें आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने जो है वो अपने रीडर के लिए जो है वो अपने कंसर्न शो करना है। तो इसमें ये होता है कि आप इससे ये रीडर को अंदाज़ा होता है कि हाउ केयर यू दैट यू केयर अबाउट द रीडर, यू केयर अबाउट द रिसीवर और द कस्टमर। तो ये तो हमारा टॉपिक था कि वो 6 पॉइंट थे जो बफर के थे कि आपने अगर नेगेटिव मैसेज को इफेक्टिवली कंपोज करना है तो उससे पहला स्टेप था बफर, देन रीजनिंग, उसके बाद बैड न्यूज़ और फिर क्लोजिंग है। अभी हमने बफर को डिस्कस किया, बफर में जो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रीजनिंग डिस्कस करेंगे और इसमें बल्कि हम उससे पहले जो है रीजनिंग जो है उसमें आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेनिंग रीडर टू अदर बेनिफिट्स, कंपनी पॉलिसी एक्सप्लेनेशन, पॉजिटिव वर्ड्स,
एविडेंस दैट मैटर वाज कंसिडर्ड फेयरली एंड सीरियसली, ये सब रीजनिंग में आती है। और उसके बाद आप बैड न्यूज़ डिलीवर करते हैं और फिर उसको क्लोजिंग करते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ है अपोलोजाइजिंग, कि आपने अपने रीडर को कैसे अपोलोजाइज, अगर आपको ये लगता है कि आपने इसको अपोलोजाइज करना है तो कैसे करना है। हमने बिगनिंग वाले लेक्चर्स में थोड़ा सा पढ़ा था, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। शोइंग एम्पैथी और प्रेजेंटिंग द रीज़न। आप फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपने रीज़न किस तरह से जो है वो प्रेजेंट करनी है। रीज़न में आप क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं रीडर को दूसरे जो बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है जी। फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कंपनी की पॉलिसी क्या है, चूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स, और फिर शोइंग फेयरनेस एंड सीरियस इंटेंट, कि आप उसमें कितने सीरियसली इन्वॉल्व हैं उस इशू को जो है वो सॉर्ट आउट करने में। उसके बाद आप जो है वो बैड न्यूज़ डिलीवर करते हैं, और बैड न्यूज़ के बाद जो है वो आप क्लोजिंग की तरफ आते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमने बफर की जो 4 कंपोनेंट्स थे, इनमें से हमने पहला कंपोनेंट जो बफर था उसको जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। अब इसमें एक अपोलोजाइजिंग है, इसको हम जो है वो शोइंग एम्पैथी, अपोलोजाइजिंग एंड शोइंग एम्पैथी को हम अपनी जूम क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, और लेक्चर में जो है प्रेजेंटिंग द रीज़न और क्वेश्चनिंग द बैड न्यूज़ की तरफ आएंगे। थैंक यू जी।